Hello, hello students. A very good one to all of you. Myself Pankaj Yadav. Welcome to the online classes. In class 10th, the chapter which are going to start that is coordinate geometry. बच्चों क्लास 10th का अपन जो चैप्टर स्टार्ट करें दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. The previous chapters that we have already discussed that were very first Vedic math that also you have cleared. After that real numbers that also you know, irrational numbers, rational numbers, polynomials, all these we have studied already in the earlier classes. Is it? Trigonometry part also you have completed. So the new chapter and very basic chapter that is coordinate geometry that we are going to start. Which one? That is coordinate geometry. What is the use of coordinate geometry in our daily life? अपन इसको कैसे यूज करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को? दैट इज टू फाइंड द लोकेशन और फॉर द पोजीशन. बेटा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अपन जो स्टडी करते हैं क्लास 10 में क्या क्या है? 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है. दैट मींस वी विल स्टडी अबाउट एक्स एंड वाई. इज इट? दिस वन इज ओरिजिन, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. Horizontal line is called x axis and vertical line is called y axis. That means only 2D we are going to discuss. That is only 2 dimensional. Is it? The use of coordinate geometry that is for the location position. How will you locate? You all know we use in daily life we use Google Map. That is said a gap is given here. How it is said? That is 1 unit is equals to 10 kilometer. Is it? And the location said in this way. You are standing here and the position of the location is here. That means for the location and for the position you have to use coordinate geometry. Okay, now we will discuss that is x axis and y axis. Horizontal line is called x axis and the vertical line is called y axis. From origin to the right side direction that will be positive x axis. That will be positive x axis. And from horizontal or from origin to left hand side that will be negative x axis. That will be negative x axis. That is used for the location. Is it? From topward direction that will be positive y axis and downward will be negative y axis. Is it? That we are going to represent by y dash. कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? y dash रिप्रेजेंट करते हैं. कैसे लोकेशन क्या काम आ रहा है कि अगर कोई लोकेशन दी हुई है जैसे 2,-3. इज इट? ये आर्मी के लिए अपने हर एक पोजीशन के लिए अपने यूज में लेते हैं. देखो कोई लोकेशन दी हुई है दैट इज 2,-3 which means the point or the position or the location of the object is at 2,-3. Is it? If you want to locate, how we will locate on the graph? That is a graph is given. This one is vertical line. That means that will be y axis and horizontal line will be x axis. Is it? That means +1, +2, +3, +4, +5, 1, 2, 3, -1, -2, -3, -4, -1, -2 and -3. Point we are going to locate that is 2,-3. Here very first will be for the x coordinate. पॉइंट कैसे लिखते हैं? x, y से लिखते हैं. कैसे लिखते हैं? x, y से लिखते हैं. मतलब जो पहला है वो किसका है? x एक्सिस का होगा और सेकंड जो दिया हुआ है वो किसका होगा? y एक्सिस का होगा. इज इट? फॉर दैट this one is for x axis that is +2, x axis that is +2, here it is +2 and for y axis it is -3. y axis के ऊपर कितना है? That is -3. That means -3 is here. If you are going to draw a horizontal line that will intersect here, this point is called 2,-3. It means any object is placed at 2,-3 which means the object is placed here. वो object कहाँ है? यह है. ठीक है. इसके बाद बेसिक्स पार्ट देखते हैं. उसके अंदर ये मैंने बताया दिया किससे काम आता है? ये पोजीशन या लोकेशन के लिए. तो आपके इसके अंदर एक नंबर का क्वेश्चन पुटअप होता है तो मोस्ट ऑफ टाइम कहाँ से होता है? x, y क्या हो गई? कोई पॉइंट P है उसके कोऑर्डिनेट हो गई. फर्स्ट टर्म x इज कॉल्ड अब्सिका, अब्सिसा, अब्सिसा. इज इट? एंड y इज कॉल्ड ऑर्डिनेट, y इज कॉल्ड ऑर्डिनेट. अगर कहीं क्या आ रहा है कि x के पॉइंट को अपन क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? अब्सिसा. एंड फॉर द y दैट इज ऑर्डिनेट. इज इट? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की यूज कहाँ हुई? ये अपने पोजीशन और लोकेशन की यूज हुई. मैप भी अपन बता सकते हैं लेकिन फिर एक बात आती है डिस्टेंस की. ठीक है, कि कोई पॉइंट है उसकी डिस्टेंस कितनी है. क्या बात आ रही है? एक डिस्टेंस की कि अगर ये पॉइंट है
if a point is given here, that is, let us 3, 2, is it, which means 1, 2, 3, 1, 2, is it, this one is x axis and this one is y axis. बेटा फिर ध्यान रखना, हॉरिजॉन्टल लाइन है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, एक्स एक्सिस को, वर्टिकल लाइन है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, वाई एक्सिस को. बोथ द एक्सिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, विच मीन्स इफ बोथ द लाइन्स आर परपेंडिकुलर, दैट मीन्स दे विल बी एट 90 डिग्री. परपेंडिकुलर मतलब क्या हो गया, दो लाइन कहाँ है, 90. एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज कॉल्ड ओरिजिन. व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दिस वन इज ओरिजिन डिनोटेड बाय O, एंड द कोऑर्डिनेट आर 0, 0, इज इट. इनको पॉइंट्स को क्या बोलेंगे, 0, 0, दीज आर द पॉइंट्स ऑफ ओरिजिन. ये ओरिजिन के पॉइंट्स है. इफ यू आर गोइंग टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ 3, 2, देखना इस लाइन को ऐसे ज्वाइन कर रहे हैं, इज इट. इफ यू आर गोइंग टू मूव, दैट मीन्स कितना यूनिट हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक, अपन कितना चल रही है, 3 यूनिट. बेटा यूनिट क्यों लगा रहा हूँ, डिस्टेंस है, डिस्टेंस को मेजर करने के लिए कोई ना कोई यूनिट होती है. कभी ये नहीं कह सकते कि मैं उस जगह से 2 दूरी पर हूँ, मतलब 2 किलोमीटर, 2 मीटर, 2 सेंटीमीटर, कुछ ना कुछ डिस्टेंस की मेजरमेंट की यूनिट होती है. इसलिए यहाँ पर कोई यूनिट ले रहे हैं, इसका एक यूनिट लगा रहा हूँ मैं, इज इट. एंड फ्रॉम हियर टू हियर दैट इज 2. यहाँ से ऊपर कितना चल रहे हैं, 2 यूनिट चल रहे हैं. आई बात समझ में. ये एक बेसिक है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. ये कितना 3 यूनिट है, ये कितना 2 यूनिट है. टोटल इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए कितना जगह चलना पड़ रहा है, दैट इज 3 + 2 दैट इज 5 यूनिट. अगर अपन x एक्सिस से चल रहे हैं, इफ यू आर गोइंग फ्रॉम अ y एक्सिस इन द डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस, देन आल्सो हाउ मच विल मूव, दैट इज फ्रॉम हियर टू हियर इट इज 2 यूनिट. और y एक्सिस से चल रहे हैं तो भी कितना यूज ले रहे हैं, 2 यूनिट. तो ये हो गया. आफ्टर दैट फ्रॉम हियर टू दिस पॉइंट दैट इज 3 यूनिट. ये कितना 3 यूनिट है, ये भी कितना होगा 3 यूनिट होगा, विच मीन्स दैट विल बी 5 यूनिट. आई पास में. इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए यहाँ से चल रहे हैं तो भी 5 यूनिट चल रहा है, यहाँ से चल रहा है तो भी कितना टाइम लग रहा है, कितना डिस्टेंस है, 5 यूनिट ही है. फिर इसकी जरूरत कहाँ पड़ी, वेयर वी हैव टू फाइंड डिस्टेंस, मतलब अपन सबसे डिस्टेंस क्या है, ये चल रहे हैं अपन, ठीक है. इफ यू आर गोइंग टू मूव इन द डायरेक्शन दैट इज दिस वन, इफ यू आर गोइंग टू मूव डायरेक्टली फ्रॉम पॉइंट दिस टू हियर, दैट पॉइंट वी हैव टू फाइंड आउट. ये पॉइंट या डिस्टेंस निकालने के क्या यूज में लेंगे, इस पॉइंट के लिए डिस्टेंस निकालने के क्या यूज में लेंगे, distance formula, is it. What is distance formula, that is how will you write, let this is O and this point is P, that means OP square is equals to x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. What is the meaning of all these, x2 minus x1, y2 minus y1. x2 minus x1 means 2 पॉइंट्स हैं, कौन कौन से पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट O दिया हुआ है x1, y1, एक पॉइंट x2, y2. ये 2 पॉइंट्स हैं x1 y1, x2 y2, ठीक है. ये रिप्रेजेंट करा है x को, ये रिप्रेजेंट करा है y को, ये x2 को, ये y2 को. 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, x2 minus x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 का होल स्क्वायर, इज इट. अगेन आई एम गोइंग टू राइट डाउन एंड हाउ विल टेक यूज एंड हाउ विल यूज इट, दैट इज डिस्टेंस ऑफ PQ. हियर पॉइंट P इज x1, x2, y2 एंड पॉइंट Q इज x1, y1, is it, which means फर्स्ट वन पॉइंट इज हियर P, कौन सा है, ये फर्स्ट है, Q कौन सा है, सेकंड है. ये बात है. इसका मतलब ये पॉइंट्स अपन चेंज करने होंगे. पॉइंट P है वो कौन सा है, फर्स्ट है, दैट मीन्स ये हो गया. पॉइंट Q है सेकंड है, विच मीन्स ये हो गया, ठीक है. सबसे पहले क्या लेंगे, फॉर्मूला क्या था अपना, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. यही है. पहले पॉइंट इसके आएंगे, बाद में पॉइंट इसके आएंगे. पॉइंट क्या ले रहे हैं, PQ डिस्टेंस निकाल रहे हैं. कोई पॉइंट, ये 2 पॉइंट दिए हुए हैं, इनके बीच में डिस्टेंस निकाल रहे हैं P और Q. इनके कोऑर्डिनेट्स ये दिए हुए हैं x1 y1, x2 y2. दैट मींस हाउ विल राइट डाउन x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. ये अपने एक डायरेक्टली निकालने का तरीका है. कोई 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, उनके बीच में डायरेक्ट डिस्टेंस कितनी होगी, ठीक है. ऐसा हॉरिजॉन्टल लाइन से चलकर ये निकाल सकते हैं. लेकिन अगर आपके हॉरिजॉन्टल लाइन से निकाल सकते हो, लेकिन आपको ये पूछ लिया कि ये 2 पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है,
this one is minus 2 comma 3 and this one is 3 comma 3. These two are the points. इन दो पॉइंट्स के बीच डिस्टेंस निकालना है तो कैसे निकालोगे, ये निकालोगे क्या, पहले ये चल रहे हैं कितना 3 चलना पड़ा है, 3 यूनिट ये हो गया, फिर 2 यूनिट ये हो गया, यहाँ से फिर ये 3 यूनिट ये हो गया, फिर 3 यूनिट ये हो गया. इज इट विच मीन्स 3 + 2 5, 5 + 6 11 यूनिट. अगर घूम के चल रहे हैं कितने चलना पड़ रहा है, 11 यूनिट. डायरेक्ट डिस्टेंस तो ये होगी, डिस्टेंस क्या होता है, मिनिमम पाथ, डिस्टेंस कवर्ड विच इज दैट इज वी हैव टू कवर मिनिमम पाथ. इज इट फॉर द मिनिमम पाथ वी हैव टू फाइंड द डायरेक्शन दैट इज दिस वन, for which formula will use x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. Is it, how will you put the values that are, if 2 points are given a and b, 2 points are given a and b, point a is 3,2 and point b is 3, minus 2. Is it, these are the 2 points. If we have to find out distance ab, that means ab square is equals to x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square, which means ab square is equals to value of x2 will be, देखना x2 और x1 किसको लेंगे, ये पॉइंट कौन सा आ रहा है, पहले आ रहा है, ये बाद में आ रहा है, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया. x2 का मतलब सेकंड कोऑर्डिनेट में चलेंगे, b कोऑर्डिनेट में चलेंगे. इसमें x की वैल्यू कितनी है 3, दैट इज 3 माइनस x1, 1 मींस फर्स्ट पॉइंट इज a में x की वैल्यू कितनी है 3 होल स्क्वायर प्लस y2 which means second point that is b and value of y is in b, that is minus 2 minus as it is y1, that means first point कितना है a है, फर्स्ट पॉइंट कितना है a है, which means value of y is 2 whole square. Is it, ab square is equals to 3 minus 3 0 square, 2 minus 2 minus that will be minus 4 हो गया. आई बात सुन, which means ab square is equals to minus 4 square that is 16. ab square कितना हो गया 16. now what will do, square root, both the side square root करेंगे, ab square root and square root of 16, दोनों साइड स्क्वायर रूट करें. डिस्टेंस क्या निकालनी है अपने, ab निकालनी, ab स्क्वायर निकल गया, ab निकालनी, क्या करें स्क्वायर रूट कर रहे हैं. अब एक चीज समझना है यहाँ पर कि अगर डायरेक्ट दिया हुआ है x इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 16 दिया हुआ है, इसका कितना हो गया 4 हो गया, डायरेक्टली कितना होता है 4 हो गया. इफ x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 दिया हुआ है, इसका करें क्या करेंगे, यहाँ से स्क्वायर हटेगा, दैट मीन्स दैट विल बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 16 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 16 दैट इज प्लस माइनस 4. बेटा जब भी ये लगा रहे हैं स्क्वायर रूट हटा रहे हैं तो प्लस माइनस दोनों साइड साथ में आते हैं. इज इट, फिर कहोगे सर यहाँ पर आपने क्यों नहीं लगाया, ये क्या निकाल रहे हैं, डिस्टेंस निकाल रहे हैं. डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती, कभी सुना है क्या कि -4 किलोमीटर चल के आए या फिर +4 -2 किलोमीटर चल के आए, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकती. विच मीन्स ab विल बी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 16 दैट इज 4 यूनिट. इज इट, क्या क्या चीजें की है, सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री विच मीन्स वी हैव टू फाइंड पोजीशन एंड लोकेशन ऑफ द पॉइंट. कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई पॉइंट है, उसकी लोकेशन और ऑब्जेक्ट निकालने काम में लेते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. इज इट, आफ्टर दैट व्हाट यू स्टडीड कि हॉरिजॉन्टल लाइन से चल रहे हैं, वर्टिकल लाइन से चल रहे हैं, तब उसके बीच में कितना डिस्टेंस आ रहा है, बट डिस्टेंस इज मिनिमम पाथ वी हैव टू कवर. कोई पॉइंट दिए हैं, दैट मीन्स मिनिमम पाथ वी हैव टू कवर, विच मीन्स मिनिमम पाथ कवर करने क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट डिस्टेंस निकालना होगा. उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, x2 minus x1 होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 होल स्क्वायर. डायरेक्टली इसको अपन यहाँ से चेंज करना चाहें, इसका मतलब ये स्क्वायर लगा हुआ है, और इसको हटा देंगे, स्क्वायर हटा दिया, ठीक है. अगर इस साइड से स्क्वायर हटा रहे हैं, विच मीन्स इस साइड क्या जाएगा स्क्वायर रूट. आई बात में, दोनों चीज एक ही है, स्क्वायर लगा के फिर ये लिख रहे हैं, ये स्क्वायर हटा के स्क्वायर रूट लगा रहे हैं, दोनों चीज एक ही आती है. आई बात में, उसके फिर चल रहे हैं, एक्स कोऑर्डिनेट क्या बोलते हैं, अब्सिसा दैट इज ABSCISSA, अब्सिसा दैट इज कॉल्ड एक्स कोऑर्डिनेट. एंड फॉर द वाई इज कोऑर्डिनेट, फॉर द वाई इज कोऑर्डिनेट. इज इट, यहाँ तक क्लियर है. आफ्टर दैट ये फिर मैंने फॉर्मूला बताया है कि सर ये x2 minus x1 कर रहे हैं, y2 minus y1 कर रहे हैं, इससे क्या चेंज है बेटा, ये तो होल स्क्वायर दिया हुआ है, अगर ये 4 minus 3 करके होल स्क्वायर करोगे तो भी वही बात है, या फिर 3 minus 4 होल स्क्वायर करोगे तो भी वही बात है. 4 minus 3 होल स्क्वायर दैट इज 1 स्क्वायर इक्वल्स टू 1 एंड 3 minus 4 दैट इज -1 का होल स्क्वायर, वो भी कितना होगा 1 ही होगा.
इसके अंदर कैसे भी चेंज करने से कोई फर्क नहीं होगा, वैल्यू है जो रिजल्टेंट है वो अपना वही आएगा। फिर ये x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 क्यों कर रहे हैं, ये इसलिए कर रहे हैं क्लास 11th में जाने के बाद आपको पता लगेगा कि y इक्वल्स टू mx प्लस c ये किसकी होती है, ये इक्वेशन है लाइन की। ये इक्वेशन किसकी है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन व्हिच मींस हियर द m इज स्लोप, here the m is slope. For m you have to write down that is y2 minus y1 upon x2 minus x1। ये स्लोप का जो फॉर्मूला है जो आपकी 11th क्लास में यूज होगा y2 minus y1 upon x2 minus x1। इस चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए या फिर डायरेक्टली ध्यान रखने के लिए आपने क्या कर दिया, x2 minus x1 और y2 minus y1 कर दिया है। अगर इसके अंदर x1 minus x2 करेंगे, y1 minus y2 करेंगे, आंसर रिजल्टेंट वही आएगा, डिस्टेंस में कोई फर्क नहीं होगा। ठीक है, डिस्टेंस निकाल रहे हैं। देखो एक चीज और सीखना है यहाँ पर, मैं कह रहा हूँ डिस्टेंस कोई फर्क नहीं होगा। ये मैंने ए बी लिखा है, अगर मैं यहाँ पर बी ए लिख दूंगा तो क्या हो जाएगा, ये तो आना x1 पॉइंट चेंज कर दिए y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, ये तो पॉइंट ए ये है, पॉइंट बी ये है। अगर मैं ए से बी से दूरी तय कर रहा हूँ, ए से चल के बी तक गया, मेरे 5 किलोमीटर निकला है। जब मैं ए से मेजर कर रहा हूँ तो कितना कर रहा है, 5 किलोमीटर। तो बेटा बी से मेजर करूंगा मैं, अगर बी से मेजर करूंगा तो भी कितना लगेगा, 5 किलोमीटर निकलेगा। डिस्टेंस चेंज थोड़ी होगी, इन दो पॉइंट्स की डिस्टेंस चेंज हो ही नहीं सकती। अगर ए से बी चलो या बी से ए चलो, इसका मतलब इन साइंस के ऊपर x2 माइनस x1 या x1 माइनस x2 इन पे कोई डिपेंड नहीं कर रहा है। ये केवल आपको थ्योरेटिकल याद रखने के लिए बस फॉर्मूला होता है कि x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपका। इज इट? आफ्टर दैट अगेन स्टडी, दैट इज अगेन आई एम गोइंग टू टेल यू 2 points are given। Let us see the points are, point A is 3,2 and point B is 6,9। Is it? These are the points। दोनों निकाल रहे हैं, पहले ए बी भी निकालें, मैं कह रहा हूँ ए बी इक्वल्स टू बी ए होगा, दोनों निकाल रहे हैं कोई फर्क नहीं होगा। इज इट? फर्स्ट ऑफ ऑल ए बी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। इज इट? विच मीन्स here x2 वैल्यू ऑफ x2 विल बी ऑफ b, बिकॉज ये फर्स्ट आ रहा है, ये सेकंड आ रहा है, मतलब जहां पर 2 की बात कर रहा है वो किसकी बात कर रहा है, b कोऑर्डिनेट की बात कर रहा है, और जहां पर 1 की बात कर रहा है वो किसकी बात कर रहा है, a की बात कर रहा है। इज इट? विच मीन्स पॉइंट a x2 दैट मीन्स 6 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस 2 होल स्क्वायर। ओके, दैट मीन्स 6 माइनस 3 दैट विल बी इक्वल्स टू 3 स्क्वायर, and for the 9 minus 2 that will equals to 7 whole square। Is it? For that square of 3 that is 9 and the square of 7 is 49। if we are going to add 49 plus 9 that will be equals to 58 and the square root of 58, it means AB equals to square root of 58 unit। Is it? It means AB equals to square root of 58 unit। अब बेटा ये निकाल रहे हैं, मैंने कहा AB और BA में कोई चेंज नहीं है, क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि इसमें डिस्टेंस दिया हुआ है, डिस्टेंस के ऊपर कोई चेंज नहीं आ रहा। अगर एक प्लेस से दूसरे प्लेस के डिस्टेंस निकाल रहे हैं, चाहे इस साइड से चल के वैसे निकालो या उस साइड से आगे ऐसे निकालो, एक ही बात होगी। अब क्या निकाल रहे हैं अपन, बी ए निकाल रहे हैं। इज इट? फॉर दैट बी ए इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ फॉर्मूला यही है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, which means value of x2 will be here, value of x2 will be which is second coordinate and the first one is a, first one is b and second one is a। for that second coordinate value of x will be in coordinate a that is 3 minus x1 that is 6 minus 3, which means very first x2 that means second ratio a that is 3 minus x1 that is b which means 6 whole square plus value of y2, it means second coordinate, second point we are going to take, for the second is a and here the in a value of y is 2 minus y1 that means first point we are going to take, in very first point that is b value of y will be 9 whole square, which means 3 minus 6 will be equals to minus 3 whole square and 2 minus 9 that will equals to minus 7 whole square। for that square of minus 3 will be, but minus into minus that will be plus, for that square of minus 3 will be 9 and square of minus 7 will be plus 49, because minus 7 multiplied by minus 7 minus minus that will be plus, 7 7 is 49। is it? so after addition 9 plus 49 that will be equals to
स्क्वायर रूट ऑफ 58 यूनिट। आया कि नहीं आया बेटा? चाहे अपन बी ए से चल रहे हैं या फिर ए बी से चल रहे हैं, 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 ले रहे हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, अगर आप ए बी लिख रहे हो, क्या लिख रहे हैं अपन, ए बी लिख रहे हैं, इसका मतलब ये फर्स्ट हो गया, बी ए कौन सा हो गया, सेकंड हो गया। इसके पॉइंट दिए हैं उनको अपन क्या मानेंगे, x1 y1, इसके पॉइंट को x2 और y2, इज इट। और अगर इसी केस के अंदर अगर कोई पॉइंट है, सी डी लिख दिया अपन ने, इसके पॉइंट ये फर्स्ट पे आ रहा है, ये सेकंड पे आ रहा है, प्लेस देख लेना, ये फर्स्ट प्लेस पे आ रहा है, ये सेकंड प्लेस पे आ रहा है, विच मीन्स फॉर सी कोऑर्डिनेट विल बी x1, y1, इज इट, एंड फॉर द पॉइंट D विल बी x2, y2, is it? After that, distance formula we have covered. Next part, that is internal division and external division. The basics we will complete in this video, and the remaining part that we will discuss further. What is the internal division, external division? A line is given, a line AB is given. If point P divides the line segment in m ratio n, ये पॉइंट है, इसको किस रेशियो में डिवाइड करें, m रेशियो n में। जैसे अगर ये लिखा हुआ हो, ये कोई लाइन है, इसमें पॉइंट P है 1:2 में डिवाइड करा है, वैसे पॉइंट P किस रेशियो में डिवाइड करा है, m रेशियो n में। अब ये बताना, ये पॉइंट P है, इंटरनल डिवाइड करा है, एक्सटर्नल डिवाइड करा है, जी बेटा जी ये बीच के अंदर ही आ रहा है, इस लाइन के ऊपर ही है ना। इफ दिस पॉइंट P लाइज ऑन द लाइन विच मींस इट विल डिवाइड द लाइन सेगमेंट इंटरनली, इज इट। ये इसी लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, इसका मतलब कहाँ डिवाइड करेगा, ये इंटरनली डिवाइड करेगा। और अगर ये बाहर की तरफ आता है, ये पॉइंट P बाहर की तरफ आ रहा है, इसका मतलब कैसे डिवाइड करता है, एक्सटर्नली डिवाइड करता है। तो फॉर्मूला विल बी दैट इज x1, y1, x2, y2 एंड दैट इज x, y, इज इट। फॉर दैट पॉइंट P वी हैव टू फाइंड आउट व्हिच मींस x इज इक्वल्स टू, अभी अपने जो डिस्टेंस फॉर्मूला किया था उसमें क्या किया था, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 ये किया था। इसका मतलब क्या हुआ कि जहां पर x कोऑर्डिनेट यूज में ले रहे हैं वहां पर केवल x यूज में लेंगे, और जहां पर y यूज में ले रहे हैं वहां पर ओनली y यूज में लेंगे। x यूज में ले रहे हैं यहाँ पर केवल x वाले कोऑर्डिनेट्स यूज में लेंगे। फर्स्ट रेशियो क्या है, m, पहले रेशियो आ गया। इसके अपोजिट का कोऑर्डिनेट क्या है, x2, y2 है, लेकिन यूज में कौन सा लेना है, केवल x का यूज में लेना है, विच मीन्स x2 प्लस नेक्स्ट रेशियो इज n, इसका अपोजिट कोऑर्डिनेट कौन सा आ रहा है, x1 y1, लेकिन अपने केवल x यूज में लेना है, केवल x निकाल रहे हैं, केवल x यूज में लेंगे, डिवाइडेड बाई m प्लस n। ठीक है, m प्लस n क्यों, कंप्लीट लाइन को डिफाइन करें, m प्लस n रेस से निकाल रहे हैं, m प्लस n दोनों को ऐड करें, कंप्लीट लाइन ए बी आ रही है, विच मीन्स फॉर y इक्वल्स टू सेम रेशियो ये ले रहे हैं, पॉइंट ये लेंगे, रेशियो ये लेंगे तो पॉइंट ये लेंगे। m इस साइड रेशियो क्या आएगा, x2 y2 आ रहा है, लेकिन y कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं, उसके लिए कौन सा आएगा, ओनली y2 प्लस n। फॉर दैट ये रेशियो ले रहे हैं, पॉइंट इस साइड का आएगा, x1 y1 है, विच मीन्स only y1 we are going to take because y point we have to find out, that is m plus n, is it। for the x, mx2 plus nx1 upon m plus n and my2 plus ny1 upon m plus n। in external division what we are going to take, in external division a line segment is given AB, here the point P is given, ratio A to P is m and B to B is n, AP upon BP कितना हो गया, m अपॉन n। ये बात है, A से P तक चल रहे हैं वो रेशियो m आ रखा है, और B से P तक चल रहे हैं वो रेशियो कितना आ रखा है, n आ रखा है। इसका मतलब डिवीजन कौन सा है, क्या ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, इट डज नॉट लाई ऑन दिस लाइन, विच मीन्स दिस इज एक्सटर्नल डिवीजन। फॉर द एक्सटर्नल डिवीजन व्हाट वी आर गोइंग टू टेक, x1, y1, x2, y2, here the point P is x, y, which means point P we have to find out, that is x is equals to m, फर्स्ट m ये ले रहे हैं, पॉइंट दूसरे का, m किसका रेशियो है, a का रेशियो, AP का मतलब a का रेशियो है, पॉइंट किसका लेंगे, b का लेंगे, m x2, आफ्टर दैट n x1। मैंने साइन नहीं लगाया, साइन नहीं लगाया, क्यों नहीं लगाया वो बता रहा हूँ मैं बेटा। मैंने क्या कहा था, नीचे जो डिवाइड में आ रही है वो क्या आनी चाहिए, एक लाइन आनी चाहिए। लाइन आने का मतलब यहाँ पर मैं अगर m प्लस n कर रहा हूँ, m प्लस n कर रहा हूँ, ये m तो इतना हो गया n, ये मतलब ये यहाँ से चला जाएगा रेशियो, लाइन से बहुत बड़ा हो गया। अगर कंप्लीट रेशियो m में से अगर मैं n सब्ट्रैक्ट कर दूं, ये लाइन ही बच रही है ना, ये रेशियो m कहाँ से है, a टू p है, इस रेशियो में से इतना रेशियो माइनस कर देंगे, केवल लाइन बचेगी, इसका मतलब m माइनस n करना पड़ेगा। अगर नीचे माइनस कर रहे हैं, यही फॉर्मूला क्या हो गया, एक्सटर्नल डिवीजन का। एंड फॉर द y इज सेम, रेशियो m ले रहे हैं, पॉइंट अपोजिट लेंगे, दैट मींस m y2 माइनस n y1 अपॉन m माइनस n। ये नीचे वाला क्या डिफाइन कर रहा है, कंप्लीट लाइन को डिफाइन कर रहा है, m माइनस n क्या डिफाइन कर रहा है,
कंप्लीट लाइन को डिफाइन कर रहा है। जैसे हम इसमें चल रहे हैं, m प्लस एन क्या डिफाइन कर रहा है, m प्लस एन करते ये m इतना है, n का पार्ट ये है, इसका मतलब इसको ऐड करने का मतलब क्या हो गया, कंप्लीट लाइन ए बी इज डिफाइंड। इज इट सेम वे इन दैट m माइनस एन, कंप्लीट m ये है, इसमें से अगर n माइनस कर रहे हैं एक लाइन सेगमेंट आगे ए बी, इसलिए नीचे m प्लस एन m माइनस एन का ये रोल है। आई बात समझ में? इज इट ओके? आई होप अपना ये अभी 12th क्लास में इतना लेक्चर दिया भाई, इसमें जो बेसिक्स है वो यही है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। थैंक यू, टेक केयर।